لی گئی تھی تو ڈگری کالج کو چلانے کے لیے اساتذہ نہیں تھے، تو اس وقت میں نے اپنی جانب سے چلائے جانے والے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے ڈگری کے اساتذہ کی ہم نے تنخواہیں دی، اور ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ جتنے بھی طلباء اور طالبات داخلہ حاصل کر رہے ہیں ان کے تعلیم میں کوئی کمی نہ آئے، اور اسی وجہ سے اپنی جانب سے ہم نے قریب سال بھر تک لیکچررز کی تنخواہوں کو ہم نے دیا۔ جونیئر کالج میں بھی ہم نے اپنا تعاون دیا، تو پھر یہ پیچھے کی عمارت بالکل مفدود ہو گئی تھی، اور پھر لوگوں نے کہا کہ اس عمارت کو منہدم کر دینا چاہیے، ڈیمالش کر دینا چاہیے، تو پھر اس وقت بھی میں نے اپنی جانب سے 25 لاکھ روپیہ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے دے کر اس عمارت کا ہم نے رینوویشن کروایا اور اس عمارت کو باقی رکھا، اور آج بھی یہ عمارت مضبوط ہے، اس کے اوپر ایک نہیں 2 فلورز آ سکتے ہیں۔ ہم نے سول انجینئرز کے ایکسپرٹس کو بھیجا کر یہاں پہ پورا سروے کروایا، اور انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ عمارت کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اس عمارت میں ڈگری کالج کا آغاز کیا، اور پھر یہاں پہ جو اسکول تھا اس کو اس طرف لے کر گئے۔ بہرحال کام ہوتا رہا، اور پھر آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 3.5 ایکڑ پر وہاں پہ کونے میں ایک فٹ بال اور کرکٹ کا گراؤنڈ ایک اسٹیڈیم کی شکل میں بھی زیر تعمیر ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی تکمیل ہوگا۔ اور پھر آج ڈگری کالج کے لیے 5 کروڑ روپیہ منظور ہوا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 5 کروڑ میں ڈگری کالج کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، تو آج اس سابقہ فائنانشل ایئر میں 5 کروڑ دیے گئے، اور اس سال کے فائنانشل ایئر میں اور 5 سے 10 کروڑ روپیہ منظور کروائیں گے، اور ایک اچھا ڈگری کالج یہاں پہ ہم لانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ اور ڈگری کے بعد جیسا اور بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہمارا ارادہ ہے کہ ڈگری کالج میں یہاں پہ ہم پوسٹ گریجویٹ کورسز کو بھی لائیں اور ماسٹرز کو بھی یہاں پر لے کر آئیں۔ اور الحمدللہ آج بہت مسرت ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگری کالج میں قریب 1000 بچے آج زیر تعلیم ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج اتنے بچے انگلش میڈیم ہو، تیلگو میڈیم ہو یا اردو میڈیم ہو، سارے اگر فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر BA، اور اس کے بعد میں BA انگلش اور BA اردو ہے، پھر BCom انگلش ہے، BCom اردو ہے، BSc انگلش ہے، BSc اردو ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے یہاں پہ انگلش اور اردو کو اردو کو جائز مقام دلانے کے لیے اور گریجویشن تک ہم ڈگری کے لیے اردو کا انتظام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اردو اور انگلش کے میڈیم کے جملہ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر میں جملہ جو طلباء اور طالبات ہیں ڈگری میں وہ 1007 ہیں، 1007۔ تو یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو آج ڈگری کالج یہاں آنے کے بعد میں اتنے طلباء و طالبات کو تعلیم کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حلقے میں سرکاری مدارس کے انفراسٹرکچر کو اتنا اچھا کریں کہ پرائیویٹ سکول سے بھی اچھا گورنمنٹ سکول ہو جائے، گورنمنٹ ایجوکیشن ہو، کیونکہ ہمارے پاس پرانے شہر میں چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو،
पुराने शहर में हमारे पास काबिलियत है, हमारे पास भी टैलेंट है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मौका नहीं मिलता। और आज हम इस फलकनुमा कैंपस के जरिए वो मौका पुराने शहर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मुहैया कर रहे हैं, जिसके जरिए वो अपनी जिंदगियों में एक नए उजालों को ला सकेंगे और एक नई सुबह का आगाज होगा, जिसमें तालीम के जरिए वो अपनी जिंदगियों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यही हमारा मकसद है और यही हम चाहते हैं। और फिर आज दूसरा जो सबसे अहम जो संग बुनियाद रखा गया है वो है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल कॉम्प्लेक्स का। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल कॉम्प्लेक्स जो यहाँ बनेगा, यहाँ पे स्कूल भी रहेगा, यहाँ पे डॉर्मेंट्री भी रहेगी, यहाँ पे किचन भी रहेगा और उनके खाने के लिए एक हॉल भी रहेगा और जुमला 600 बच्चे, 600 स्टूडेंट्स का कयाम और ताम व तालीम का इंतजाम ये कॉम्प्लेक्स में होगा। 20 करोड़ की एक बड़ी इमारत यहाँ पे इसका आगाज होगा और उसके साथ ही साथ मुख्तलिफ माइनॉरिटी के कंस्ट्रक्शन, माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग भी यहाँ पे आज संग बुनियाद रखा गया है। माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज बिल्डिंग और इसकी लागत करीब 8 करोड़ 75 लाख है और इसके भी बिल्डिंग की तामीर का आगाज होगा और ये बिल्डिंग भी शायद एक 9 महीने या साल भर में मुकम्मल हो जाएगी। डिग्री कॉलेज भी एक फेज मुकम्मल होगा, फिर बाद में और एक फेज भी तकमील करवाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता है यहाँ पे काम हो और फिर यहाँ के बच्चों को अच्छी तालीम मुहैया कराने में हम कामयाब। और फिर जूनियर कॉलेज में भी आज यहाँ पे 2200 गर्ल स्टूडेंट्स हैं। जूनियर कॉलेज में 2200 लड़कियां ज़ैर तालीम हैं, तो 1800 लड़के ज़ैर तालीम हैं जूनियर कॉलेज में। तो आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ जूनियर कॉलेज में 3000 लड़कियां और लड़के ज़ैर तालीम हैं और हर साल जो दरखास्तें आती हैं वो भी सुन के आपको हैरत होगी कि 4500 5000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं जूनियर कॉलेज में। तो आप अंदाजा लगाइए। ठीक है, मैं मानता हूं कि बहुत सारी तकलीफें हैं, जैसे होनी चाहिए वैसे क्लासेस नहीं हैं, जैसे फर्नीचर होना है वैसे नहीं है, कहीं कहीं पर फैकल्टी कुछ कम है, लेकिन ये जरूर है कि काम का आगाज तो हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला जो भी कमियां हैं उसको भी पूरा करेंगे। हमारी कोशिश है कि जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर कर सकें। और एक बात भी ये भी कहूंगा कि आपके इस कैंपस में शायद बहुत सारे पुराने शहर के लोग नहीं जानते कि कोने में पीछे आखिर में नीचे यहां से सीधे आखिर में जो बिल्डिंग है वहां पर एक सेंटर है, जो सेंटर को सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मैं चलाता हूं और फिर दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्रस्ट है, दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट, उसके ज़ेर इंतजाम डेक्कन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है। वो फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स, वो फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स यहाँ पे सेंटर में और उन स्पेशल चिल्ड्रन के लिए रिहैब करते हैं और वहां पे एक सेंटर पीछे चलाया जा रहा है कि माजूरीन जो होते हैं, जो पैर से माजूर हैं या ज़हनी तौर से माजूर हैं या कुछ डिफॉर्मिटी है, कुछ कमजोरी है, तो उनका एक सेंटर भी पीछे चलाया जा। कोविड की वजह से कई दिन तक वो सेंटर बंद था, अब फिर वो सेंटर का आगाज हुआ है और मैंने अपनी जानिब से वहां पे पूरा इक्विपमेंट मुहैया करवाया हूं, डॉक्टर्स को डाला हूं, स्टूडेंट्स को डाला हूं, ताकि
جو معذورین ہیں، جو بچے معذور ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں، اور انشاءاللہ آنے والے کل میں یہ معذور بچوں کا بھی ایک اسکول اس کیمپس میں قائم کرنے کا ارادہ ہے۔ نمہینس کی طرح ایک بنگلور میں بہت بڑا سینٹر ہے جہاں پہ یہ معذورین کے لیے کام کیا جاتا ہے، اس کا ایک سینٹر بوئن پلی میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو معذور ہیں ان کا بھی ایک سینٹر یہاں پہ آئے، اور پھر ہماری کوشش ہے کہ جونیئر کالج میں صرف ایم پی سی، بی پی سی یا سی ای سی یا ایچ ای سی نہیں، بلکہ ہم انٹرمیڈیٹ میں ووکیشنل ٹریننگ کا بھی آغاز کر رہے ہیں جونیئر کالج میں، تاکہ اسکل ڈیولپمنٹ ہو۔ اسکل مطلب یہ کہ کوئی ہنر سیکھے، ایسا نہیں کہ صرف کتابوں میں ہے پڑھ لیں اور ختم ہو جائے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہنر بھی سیکھیں۔ اس کے لیے میں ممنون ہوں، مشکور ہوں ہمارے سیکرٹری صاحب کا، جو ہائر ایجوکیشن کے جناب عمر جلیل صاحب کا، جو بار بار یہاں پہ دورہ کرتے ہیں اور بار بار ان کی کوشش رہتی ہے کہ کیمپس کو ڈیولپ کریں۔ تو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک مرکز بنے، اور پھر انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں یہ فلک نما کیمپس ایک مرکز بنے گا، گروپ 1 کی ٹریننگ کا، گروپ 2 کی ٹریننگ کا، نیٹ کی ٹریننگ کا، آئی آئی ٹی کی، اور پھر یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ آئلٹس اور جی میٹ یا دوسرے کورسز میں بھی یہاں پہ ٹریننگ ہو۔ میں لڑکیوں سے بھی کہوں گا، لڑکوں سے بھی کہوں گا جو ڈگری کر رہے ہیں، کہ ماسٹرز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ڈگری کے بعد، اور ماسٹرز اگر آپ امریکہ، یو کے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا یو ایس اے میں جا کے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کوشش کریے۔ اوورسیز اسکالرشپ کی ایک اسکیم کو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم نے آغاز کروایا ہے، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اوورسیز اسکالرشپ ماسٹرز کرنے کے لیے اب تک ہماری ریاست سے 2000 بچے اور بچیاں یو ایس اے، یو کے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ گئے ہیں ماسٹرز کرنے کے لیے۔ تو گورنمنٹ کی جانب سے پلین کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، ویزا پروسیسنگ کی فیس دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے سیمسٹر کی فیس دی جاتی ہے۔ 20 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو 20 لاکھ روپی۔ کوئی قرض نہیں ہے، یہ صرف دے دیتے ہیں تاکہ ہماری ریاست کے بچے قابل بنے، ماسٹرز حاصل کریں۔ اور اگر اسکالرشپس کو ہم دیکھیں تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اب تک 17 لاکھ اسٹوڈنٹس کو قیام تلنگانہ کے بعد سے آج تک 17 لاکھ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی گئی ہے، 17 لاکھ۔ یہ مجلس کی نمائندگی پر ایوان اسمبلی میں بار بار لڑتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ مسلمانوں کی اسکالرشپ 200، 400، 600 روپئے ہے، اور لڑنے جھگڑنے کے بعد آج سیچوریشن کی لیول تک مسلم اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، چاہے وہ ایم بی بی ایس کرو، بی ای کرو، آرکیٹیکچر کرو، ایل ایل بی کرو، نرسنگ کرو، فزیو تھراپی کرو، فارمیسی کرو، ڈینٹل کرو، کچھ بھی کورس کرو، ایگزام کوالیفائی کر لو اور سیٹ الاٹمنٹ حاصل کر لو، کاؤنسلنگ کے ذریعے فیس گورنمنٹ سے ادا کی جاتی ہے۔ آج یہ کام ہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ تعلیم کے میدان میں میں کہوں گا کہ بہت بڑی کامیابی جو میں نے اور میری جماعت نے حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سہولتیں، جتنے بھی مراحل ایس سی ایس ٹیز کو دیے جاتے ہیں، ریاست تلنگانہ میں جیو نکالا گیا ہے کہ مسلم اسٹوڈنٹس ول بی ٹریٹڈ آن پار ود ایس سی اینڈ ایس ٹی اسٹوڈنٹس کے برابر۔ جتنے بھی، اگر ایس سی ایس ٹی کو کتابیں دی جاتی ہیں تو مسلمس کو بھی دینا ہے، ان کو پاکٹ منی دی جاتی ہے تو مسلمس کو بھی دینا ہے۔ یہ اتنا غیر معمولی کامیابی ہم نے حاصل کی کہ کسی ہندوستان کی ریاست میں مسلم اسٹوڈنٹ کو ایس سی ایس ٹی کے برابر سارے مراحل نہیں دیے جاتے جو مراحل آج ہماری ریاست تلنگانہ میں دیے جا رہے ہیں۔
मजलिस की कामयाबी है, मजलिस की कामयाबी है कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिलवाया। सारे दफातर में उर्दू मुतरजम को हमने मुकर्रर करवाया कि हर डिपार्टमेंट में उर्दू एप्लीकेशन को रिसीव किया जाता है, उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, उर्दू के साथ इंसाफ का हमने मुतालबा किया। दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ हासिल करने में कामयाबी हासिल की। न सिर्फ ये बल्कि ग्रुप 1 होने दो, ग्रुप 2 होने दो, सरकारी मुलाजिमत के तखर्रुरात के जितने भी इम्तिहान रियासत के होंगे वो सारे के सारे इम्तिहान उर्दू में मुनक़िद किए जा रहे हैं। रियासत उर्दू में, आप गौर करो, उर्दू में ग्रुप 1 उर्दू में होगा रिक्रूटमेंट। लेकिन आज लोग उर्दू को मुसलमानों से जोड़ते नहीं। उर्दू का मजहब नहीं है, जबान का कोई मजहब नहीं होता। ये जबान सबकी जबान है। पुराने शहर के हिंदू भाई भी उर्दू बोलते हैं। पुराने शहर और हैदराबाद के हर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उर्दू बोलते हैं। उर्दू सबकी जबान। जिस तरीके से तेलुगु हमारी जबान है, जिस तरीके से हिंदी भी हमारी जबान है, उसी तरीके से उर्दू भी हमारी जबान। और उर्दू को हमने रोजगार से जोड़ा, उर्दू को हमने रोजी रोटी से जोड़ा। ये काम आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कर रही है। ये एक गैर मामूली काम है, गैर मामूली काम। तालीम के मैदान में अगर हम हुकूमत से नुमाइंदगी कर या हुकूमत से मुतालबा कर या हुकूमत से लड़कर अगर हम अपने तालीम के मैदान में कुछ हासिल करते हैं तो हम अपनी जानिब से भी कुछ करते हैं। ऐसा नहीं कि सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे डाल दें और हम खाली खड़े रहे। नहीं, चंद्रायन गुट्टा हल्का असेंबली अगर हुकूमत से जिद्दोजहद कर कर, मुतालबा कर कर, दरखास्त कर कर, लड़कर अगर तालीम के मैदान में नुमाइंदगियां कर कर कामयाबी हासिल करती है तो अपने तौर पे भी हम काम करते हैं, अपने तौर पे भी करते हैं। कौन एमएलए होगा बताओ जो अपने जेब से लगाकर इमारत बनाता है? सरकारी मदारस के कैंपस में कौन सा एमएलए होगा जो अपनी जेब से डिग्री कॉलेज के लेक्चरर्स की तनख्वाह देता है? कौन एमएलए होगा जो अपने हल्के के हजारों बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम कर रहा है? आज मेरे स्कूल में, मेरे अपने स्कूल में, मेरे अपने हैं, और ये मेरे अपने जब कहता हूं तो मैं खुद चलाता हूं, मैं खुद तामीर करता हूं और मैं खुद तालीम का इंतजाम करता हूं। फलकनुमा का ये कैंपस है, केजी टू पीजी। हुकूमत से मुतालबा किया और आज ये केजी टू पीजी के कैंपस का ख्वाब पूरा हो रहा है। तो मैंने अपनी जानिब से बल्लागुड़े में भी केजी का पीजी का एक शानदार कैंपस बनाया है। आकर देखो आप कि कैसा कैंपस है। 11 मंजिला इमारत, मिनी फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट का इंतजाम, बास्केटबॉल का इंतजाम, टेनिस कोर्ट है वहां पे, और उसके बाद में टेबल टेनिस भी है, शानदार लाइब्रेरी है, वहां पे स्कूल है, और उसके बाद जूनियर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, और वहां पे और स्कूल एजुकेशन फ्री हम देंगे, फ्री तालीम का इंतजाम, नर्सरी से लेकर 10 तक फ्री इंतजाम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ ये एक स्कूल नहीं, हमारे हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे में कई स्कूल है जो मैं चलाता हूं। रियासत नगर में है, और उसके बाद हाफिज बाबा नगर में है, नरकी फूलबाग में है, सलाला बारकस में भी है, और फिर तालाब कट्टा नशेमन नगर में है, और अंबरपेट में है। हमारी 14 इमारतें, 14 इमारतें। मोगलपुरे में एक कैरियर गाइडेंस का एक सेल हम बना रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग का एक मरकज वहां पे ला रहे हैं मोगलपुरे में, जहां पे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और दूसरे 10th ड्रॉप आउट है। अगर कोई बच्चा 10th का इम्तिहान नहीं लिखा, ड्रॉप आउट हो गया है, हम उसको दोबारा तालीम की तरफ रागिब करेंगे और कोचिंग देकर उसका 10th का इम्तिहान लिखाएंगे। हर साल सालाना मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मैं 10th के
गवर्नमेंट के स्कूल्स के बच्चे हो या प्राइवेट के हो, हमारे स्कूल में हम उनको 10th की कोचिंग देते हैं। 10th की कोचिंग में अगर कोई 9.5 मार्क्स लाता है तो हम उसको इनाम देते हैं। पहले 20,000 देते थे, 25,000 जूनियर कॉलेज की फीस देते थे, और हजारों बच्चे हमारी 10th की कोचिंग के वो क्रैश कोर्सेस का 2 से 3 महीने का जो एक टर्म होता है जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, हजारों बच्चे आते हैं। हम फिर इंटरमीडिएट में अगर कोई तालीम को छोड़ दिया है तो इंटरमीडिएट के स्पेशल कोचिंग क्लासेस भी मुनक्किद करेंगे। ग्रेजुएशन में अगर कोई कमजोर है, कोई इकोनॉमिक्स में कमजोर है, कोई कॉमर्स में कमजोर है, कोई बॉटनी में कमजोर है, कोई केमिस्ट्री में कमजोर है, तो उनको उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए कोचिंग क्लासेस मोगलपुरा में हम वहां पे भी करें। नीट की एंट्रेंस की कोचिंग का भी हम आगाज करें, और फिर आईआईटी में, फिर आईआईएम्स में भी जाने के लिए, फिर उसके बाद में हमारी कोशिश है कि हम हमारे नौजवान बच्चों के कैरियर को गाइड करें, निशानदेही करें कि अगर डॉक्टरी में दाखिला नहीं मिला तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। साइंस में और भी कई ऐसे शोबेजात हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, आज बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं है साइंस में, कई फील्ड है। मैथमेटिक्स और आप साइंस कर रहे हैं तो उसमें भी कई फील्ड है। मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप सेल्स में जा सकते हैं, फिर मार्केटिंग रिसर्च में जा सकते हैं, सेल्स रिसर्च में जा सकते हैं, और रिसर्च के मैदान में मलेरिया पे रिसर्च हो रहा है, डायबिटीज पे रिसर्च हो रहा है, कैंसर पे रिसर्च हो रहा है। बताओ हमारे पास कितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं? नहीं है हमारे पास। आज हम मोगलपुरा में एक जबरदस्त ऑडिटोरियम भी बनाए हैं, 300 लोग बैठ के उस ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। वहां पे हम मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले रिसर्च स्कॉलर्स के पेपर प्रेजेंटेशंस को वहां पे मुनक्किद करेंगे, ताकि बताएंगे कि ये पेपर है, ये रिसर्च की फील्ड में ये अचीवमेंट। आज हमारी कौम को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो इल्म की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, और इल्म के जरिए अपने मुस्तकबिल को संवारो, इल्म के जरिए अपने जिंदगियों से अंधेरों को निकालो और एक नए उजालों को लाओ। यही मेरा पैगाम है, यही मेरा मकसद है कि तालीम की अहमियत को समझाऊं। तालीम ही है जिसके जरिए हम अपने जिंदगियों से जहालत का खात्मा कर सकते। तालीम ही है जिसके जरिए हम अपनी जिंदगियों में एक नई खुशहाली ला सकते। तालीम ही है जिसके जरिए हम एक नई तरक्की की मंजिल को पहुंच सकते। तालीम ही है जिसके जरिए हम अपनी जहालत का खात्मा कर सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपने रहन सहन को बदल सकते हैं, अपने अतराफ के हालात को बदल सकते हैं। जब तालीम की अहमियत है तो याद रखो, इस्लाम सिर्फ दुनिया नहीं कहता, इस्लाम ये कहता है कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलने वाले मजहब का नाम इस्लाम। दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम को भी रखें, आखिरत की भी फिक्र करें। जो शख्स सिर्फ दुनिया कहकर दुनिया के पीछे भागता है तो उसको दुनिया भी नहीं मिलती, आखिरत भी नहीं मिलती। जो सिर्फ आखिरत कह के आगे बढ़ेगा और दुनिया को भूल जाएगा तो ये भी इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम वो मजहब है जो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलने का पैगाम देता। इस्लाम वो मजहब है जो मोहब्बत का पैगाम देता। इस्लाम वो मजहब है जो सबको साथ लेकर चलने का पैगाम देता। इस्लाम वो मजहब है जो ये कहता है कि आप अपना खाना खाने से पहले अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करो। अगर पड़ोसी भूखा है तो आप अगर खाना खाएंगे तो इस्लाम उसकी इजाजत भी नहीं देता। पड़ोसी चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, ये है इस्लाम। इस्लाम नफरत का पैगाम नहीं देता, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता। लेकिन आज लोग सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए नफरत पैदा करना चाहते हैं। मैं यहां पे पढ़ने वाले मेरे
हिंदू बच्चे हों या मुसलमान बच्चे हों, सिख हों, ईसाई हों, सबसे कहूंगा कि कोई भी मजहब नफरत का पैगाम नहीं देता। कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि किसी पे जुल्म करो। हर मजहब यही कहता है कि मोहब्बत करो, एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ो। यही हमारा मुल्क भी कहता है कि हम सबको आगे बढ़कर एक होकर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको एक होना है, हम सबको नेक बनना है, अच्छे बनना है, तालीम हासिल करना है और अपने काबिलियत के जरिए अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने असातिज़ा का नाम रोशन करना है। स्टूडेंट्स बैठे उनसे कहूंगा कि कभी भी अपने मोहसिनों को भुलाना नहीं, कभी भी अपने उस्ताद को भुलाना नहीं। जिंदगी में कितने भी दूर निकल जाए, कितने भी आगे निकल जाए, इस चीज को याद रखो कि जिंदगी में आप जहां कहीं पर भी खड़े हैं, इसमें आपकी कामयाबी में आपके माँ बाप की मेहनत है, कुर्बानियां हैं, तो आपके असातिज़ा की भी मेहनत है। माँ बाप के साथ अपने टीचर्स को भी याद रखो, टीचर्स को भी याद रखो कि टीचर्स की मेहनत का नतीजा है, असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है कि आप आज काबिल बन रहे हैं, नेक बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सबको ये कोशिश करना है कि हाँ, बेशक हमारे कैंपस में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी खामियां हैं और बहुत से सहूलतें नहीं हैं, लेकिन हम इन चीजों को नहीं देखेंगे। हम अपनी जिंदगी में जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, इन कमियों की परवाह किए बगैर नई बुलंदियों पे पहुंचेंगे, नई बुलंदियों को हासिल करेंगे और कामयाब होंगे। यही कहूंगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का, मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का, मैं शुक्रिया अदा करूंगा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोगों का, मैं शुक्रिया अदा करूंगा सारे टीचर्स यहाँ पे जो बैठे हैं, मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे कॉर्पोरेटर्स का, हमारे मजलिस के कारकुनों का, हमारे सारे जितने यहाँ पे सब लोग आए हैं, आप सबका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक तारीखी दिन है कि करोड़ों रुपये के काम हो रहे हैं और फिर आज ही हमने वो भी इफ्तिताह किया है चंद्रायन गुट्टे के मुख्तलिफ स्कूल्स में, कहीं पे क्लासरूम, कहीं पे टॉयलेट, 5.5 करोड़ रुपये का वो भी आज इनॉग्रेशन हुआ है साढ़े चंद्रायन गुट्टे हल्के में, उसका भी हमने एक ही जगह पे किया है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आज जो हमने संग बुनियाद रखा है इस काम को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचा दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस कैंपस में ज़ैर तालीम जितने भी बच्चे हैं इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे बच्चे जो 10th का इम्तिहान लिखे हैं, इंटरमीडिएट का इम्तिहान लिखे हैं या डिग्री का इम्तिहान लिखे हैं, ऐ अल्लाह तो इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह यहाँ के सारे तुलबा और तालिबात की हिफाजत कर, उनको नेक रख, उनको साले बना और यहाँ के जो टीचर जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह इनकी परेशानियों में, इनकी मुसीबतों में गैब से इनकी मदद फरमा। ये भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए, हम सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और हमारे इस कैंपस को दिन दूनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ पे तालीम हासिल करने वाले बच्चों को नेक बनाए, काबिल बनाए और दुनिया में नाम कमाने की और अपनी पहचान बनाने की सलाहियत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।